Students, in this video we learn about the type of quadrilaterals. About the types of quadrilaterals. लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने स्टडी किया था कि क्वाड्रिलेटरल क्या है. व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल इज द पॉलीगॉन ऑफ फोर साइडेड. The four-sided polygon is called quadrilateral. Quadrilateral के types. There are three types of quadrilaterals, but in our syllabus for class 6 there are only two types of quadrilaterals. First, parallelogram. Second, trapezium. Parallelogram, the quadrilateral in which opposite sides are parallel. Quadrilateral जिसकी opposite sides parallel हो वो parallelogram है. Is called parallelogram और इसे is denoted by the symbol. Parallelogram के लिए इस symbol का उपयोग किया जाता है. This symbol is used to represent the parallelogram. ये दो vertical lines equal side पे रहती है, equal length की, और इसके ऊपर G M लिख दिया जाता है small letters. This symbol is used for parallelogram. अगर हमें parallelogram ABCD लिखना है तो ये लिखेंगे parallelogram ABCD. इस तरह से हम parallelogram को denote करते हैं. In the figure ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. In the figure, ABCD is a parallelogram. Now its properties are: first, opposite sides are parallel and equal. Opposite sides, AB and DC, this and this. Second pair, this and this. Opposite sides are parallel. ये sides parallel होती हैं. That means इनके बीच की distance everywhere equal होती है. Parallel lines की definition लागू हो जाएगी. AB parallel CD. AB और CD ये parallel. AB और CD parallel lines हैं. इसी तरह सेकंड पेयर BC and AD are parallel. Also AB is equal to BC or CD and BC is equal to AD. Opposite sides are parallel and equal. Next, opposite angles are equal. तो opposite angles ये पूरा एंगल A, इसके ठीक अपोजिट एंगल C. Opposite angles are equal. This angle is equal to this BAD. BAD पॉइंट A पर एंगल बनेगा. जो मिड में पॉइंट लिखा होता है उस पर एंगल होता है. तो एंगल BAD is equal to angle BCD. This angle is equal to this angle as well as this angle is equal to this angle. ABC is equal to ADC. ABC is equal to ADC. Again, sum of adjacent angles is 180. Adjacent angles देखिए ये एक एंगल A और ये एंगल B. एडजेसेंट जो एंगल पास पास हो, अपोजिट
जो आमने सामने हो तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. The sum of adjacent angles is 180 degree. This plus this 180 degree. A plus B is equal to 180 degree. Next adjacent pair B and C. Sum of B and C. B plus C is equal to 180 degree. Next C plus D is equal to 180 degree. Our other fourth pair एंगल A प्लस D या D प्लस A इज 180 डिग्री. ये तीन प्रॉपर्टी. और इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स AC and BD, diagonals AC and BD, these two diagonals intersect at point O. यहाँ कह रहा बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स यहाँ पर जो डायगोनल है दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा. AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO. लिखा AO इज CO एंड DO इज DO. ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी. इसके अलावा अन्य प्रॉपर्टीज हैं बट हम बेसिक स्टेज पर हैं. यहाँ सभी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी नहीं कर सकते. फर्दर क्लास में और इसकी प्रॉपर्टीज हैं इनको हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम. डिफाइंड हियर ट्रेपेजियम, द क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का एक पेयर AB and CD, one pair of opposite sides is parallel, is called trapezium. क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल हो वो क्या है? ट्रेपेजियम. इन द फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम. इसमें AB पैरेलल DC. ये अपोजिट साइड का जो पेयर है ये क्या है? पैरेलल. इसलिए ये क्या है? ट्रेपेजियम. स्टूडेंट्स, look on the green board. Just now we learned about the parallelogram and trapezium. Now, in some special cases, the parallelogram has its specified names. In this part, we will learn about these specified parallelograms. First, rectangle, second square, and third rhombus. ये तीन स्पेसिफाइड नेम से पैरेललोग्राम है. तो रेक्टेंगल, द पैरेललोग्राम whose one interior angle is 90. अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो चूंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अभी आपने पढ़ी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो अगर एक एंगल 90 है ये भी एंगल 90 हो गया. और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है. तो ये 90 है ये भी 90 हो गया. और फिर अपोजिट इक्वल है तो ये 90 ये 90. तो इस तरह से पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल 90 डिग्री के हो जाएं, द पैरेललोग्राम whose one angle is 90 डिग्री. अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री है तो रिमेनिंग ऑल एंगल्स आर आल्सो 90 डिग्री. Therefore, the parallelogram whose one interior angle is 90 degree is called rectangle.
In the figure, ABCD is a rectangle. Its properties, तो देखिए चूंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज इसके पास होंगी। अभी 5 प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम में पढ़ी थी। इसी वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट में या ऊपर के पार्ट में देखा कि पैरेललोग्राम के पास 5 प्रॉपर्टी। There are 5 properties in our syllabus. Parallelogram. So the rectangle is a parallelogram, so it has all properties of parallelogram. Rectangle चूंकि पैरेललोग्राम है इसलिए इसके पास पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इनको हम यहाँ सो नहीं करते। 5 प्रॉपर्टीज जो पैरेललोग्राम की हैं वो यहाँ है। हम पैरेललोग्राम से 5 प्रॉपर्टीज लर्न करें और उन 5 प्रॉपर्टीज को यहाँ रेक्टेंगल के लिए फॉलो कर लें। अब इसमें 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, हो सकते हैं बट नेसेसरी नहीं। लेकिन यहाँ ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90। रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी डायगोनल से रिलेटेड है, जो 5वीं प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल क्या थे? बाइसेक्टर थे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे। यहाँ क्या है? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं थे, बाइसेक्ट करते थे केवल। तो बाइसेक्ट यहाँ भी करेंगे। रेक्टेंगल में भी जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेकिन ये इक्वल लेंथ में ये इनकी लेंथ जो है AC इज इक्वल टू BD। ये 2 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा हो जाती हैं पैरेललोग्राम के पास, तब वह पैरेललोग्राम क्या हो जाता है? रेक्टेंगल हो जाता है। इसी तरह आगे स्क्वायर। अब स्क्वायर की डेफिनेशन देखिए। द रेक्टेंगल, स्क्वायर एक स्पेसिफाइड रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और अगर इस रेक्टेंगल की सभी साइड इक्वल हो जाएं तो ये रेक्टेंगल तो रहेगा लेकिन एक स्पेशल नेम ले लेगा। और वो स्पेशल नेम क्या होगा? स्क्वायर। द रेक्टेंगल whose all sides are of equal length is called square. In the figure, ABCD is a square. ABCD is a square. इसके रेक्टेंगल की इसके पास सभी प्रॉपर्टी हैं। इट्स प्रॉपर्टीज, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, सो इट हैज ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। अब देखिए रेक्टेंगल पैरेललोग्राम था, तो रेक्टेंगल के पास पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टीज थी और 2 अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज थी। देयर आर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल ही कन्वर्ट हो गया स्क्वायर में। तो 7 प्रॉपर्टी जो रेक्टेंगल की हैं वो स्क्वायर के पास है। स्क्वायर हैज ऑल 7 प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल्स। Square is a rectangle, so it has all of its means rectangle property. अब इसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी क्या हुई? डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। देखिए यहाँ डायगोनल्स इक्वल थे रेक्टेंगल में, तो डायगोनल्स इक्वल यहाँ भी हो क्योंकि स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही है। और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्टर थे, तो बाइसेक्टर यहाँ भी हो। लेकिन एक कंडीशन क्या बढ़ी कि इसके डायगोनल्स क्या हैं? परपेंडिकुलर हो गए। डायगोनल्स के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बनने लगा। ये सभी एंगल जो डायगोनल ये है, ये एंगल क्या है? 90 डिग्री के एंगल हैं।
इसके डायगोनल्स जो हैं क्या हैं, परपेंडिकुलर। आगे rhombus, the parallelogram whose all sides are equal, पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो जाएं वो rhombus हो जाता है। ABCD is a rhombus, its properties, the rhombus has all properties of parallelogram, पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टीज के पास है और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज के पास आ जाती है कि डायगोनल्स ऑफ rhombus are perpendicular to each other, इसके डायगोनल्स भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये rhombus। अब स्पेशल कंडीशंस आती हैं इन सभी क्वाड्रिलेटरल्स को एक डायग्राम में एक साथ देखते हैं। तो नाउ एट अ ग्लांस क्वाड्रिलेटरल और इसके सभी जो टाइप्स हैं उसको देखना। जो भी तब टोटल वीडियो में हमने अलग अलग पार्ट्स में पढ़ा, रीड किया, लर्न किया। अब इस टोटल क्वाड्रिलेटरल की फैमिली को एक पास लाने की कोशिश हो रही है ताकि एक बार देखकर आप याद कर सकें, लर्न कर सकें। तो क्वाड्रिलेटरल्स, इसका जो शेप है उसके आधार पर इसको 2 नेम दिए गए, पैरेललोग्राम एंड ट्रापेजियम। डेफिनेशंस आप इनकी अभी इसी वीडियो में देख चुके हैं, प्रॉपर्टीज भी देख चुके हैं। पैरेललोग्राम स्पेशल कंडीशंस में स्पेशल नेम्स ले लेता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। अब यहाँ ट्रापेजियम, इसके अलावा इस स्टेज पर 6th क्लास में 3rd शेप हमें नहीं बताया जाता। जो तीसरा 3rd शेप है काइट, जो हम लोग शौकीन रहते हैं, सभी लोगों ने काइट को देखा होगा, तो अपना काइट खरीदिए और उसकी प्रॉपर्टीज देखिए, समझिए। और इधर जो पैरेललोग्राम में, ट्रापेजियम में क्वालिटीज हमने स्टडी की हैं, उन क्वालिटीज को काइट पर लागू करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि काइट किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। ये इस समय हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए काइट पर हम कोई विशेष चर्चा नहीं करें। काइट की प्रॉपर्टीज या काइट की डेफिनेशन, इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे, है ना। या देखते हैं, लास्ट में बता देंगे। तो पहले यहां देखिए, पैरेललोग्राम स्पेशल क्वालिटी होने पर रेक्टेंगल, स्पेशल क्वालिटी होने पर स्क्वायर, स्पेशल क्वालिटी होने पर रम्बस। अब यहाँ इस पूरे डायग्राम का जो एम है, आखिर क्यों हम डायग्राम बना रहे हैं, वो इसलिए देखिए रम्बस क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है, रम्बस पैरेललोग्राम है, रम्बस स्क्वायर पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम क्वाड्रिलेटरल है। अब देखिए जरा, rectangle is parallelogram, but every parallelogram is not rectangle. Rectangle is parallelogram. Every rectangle is parallelogram, but converse is not true. Square, every square is parallelogram, but converse is not true. Rhombus is also पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है,
स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है और रैम्बस भी पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम ऑलवेज रेक्टेंगल नहीं है, पैरेललोग्राम ऑलवेज स्क्वायर नहीं है, पैरेललोग्राम ऑलवेज रैम्बस। ये तीनों जो नेम हैं या तीनों क्वाड्रिलेटरल्स हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रैम्बस, ये तीन के तीनों ऑल आर पैरेललोग्राम, बट every parallelogram is not rectangle, is not square, is not rhombus। अब आप मेहनत करें, प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं, जो क्वालिटीज पढ़ी हैं, देखते हैं कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बढ़ती है तो स्क्वायर होता है, तो every square is rectangle, every square is rectangle, but every rectangle is not square, every square is rectangle, but every rectangle is not square। जो एरोज ऊपर जा रहे हैं वो हैं हेड की तरफ एस, टेल की तरफ नो। स्क्वायर इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। अब स्क्वायर की और स्पेशल क्वालिटी है, जो रैम्बस में क्वालिटी है वो सब स्क्वायर के पास है। स्क्वायर इज आल्सो रैम्बस, स्क्वायर जो है वो रैम्बस है, बट रैम्बस स्क्वायर नहीं। अगर रैम्बस का एक एंगल 90 हो जाए तो रैम्बस भी स्क्वायर हो जाए, और स्क्वायर ऑलरेडी रैम्बस है। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो क्वाड्रिलेटरल की सभी प्रॉपर्टीज रखता है। हर टाइप का क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर में आता है। स्क्वायर जो है सभी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को कैप्चर किए। अब ट्रापेजियम की डेफिनेशन पे जाएं। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल साइड्स इज पैरेलल, यहाँ बोथ पेयर पैरेलल है, तो जो पैरेललोग्राम है वो ट्रापेजियम है, पैरेललोग्राम जो है वो ट्रापेजियम है, लेकिन ट्रापेजियम पैरेललोग्राम नहीं, ट्रापेजियम पैरेललोग्राम नहीं। लास्ट में चलते चलते काइट को देखना है कि काइट की एडजेसेंट साइड्स के दोनों पेयर अलग अलग इक्वल, ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल सेपरेट। ये दोनों बराबर है, और ये दोनों इसके इक्वल, ये इसके, और इसके डायगोनल, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल के द्वारा बाइसेक्ट, इट इज इक्वल टू दिस। ये जरूरी है, और ये 90 डिग्री पर होता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जो कि काइट। तो इस स्थिति में स्क्वायर जो है काइट भी हो जाता है, स्क्वायर जो है काइट हो जाता है, लेकिन काइट स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। अगर इस पर हम वर्क कर दें तो स्क्वायर काइट है। तो स्क्वायर स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जो क्वाड्रिलेटरल के सभी टाइप्स को स्वयं में होल्ड किए हुए। ओके।